Question number 9. In the expansion of 1 plus a raised to m plus n. In the expansion of this binomial, prove that, what do you have to prove? Prove that coefficient of a raised to m and a raised to n are equal. So you have to prove that coefficient of a raised to m is equal to coefficient of a raised to n. Coefficient of a raised to m equal to coefficient of a raised to n are equal in the expansion of this 1 plus a raised to m plus n. Done. So how to prove it? So now here given binomial is 1 plus a raised to m plus n. 1 plus a raised to m plus n. So our formula is 1 plus x raised to n. If we perform the expansion of this binomial, we are getting nc0 x raised to 0 plus nc1 x raised to 1, nc2 x square, nc3 x cube, and ncn x raised to n. Done. So from this, if you want to find the coefficient of x raised to n, then you have to find ncn. What is n? N is the index, and you have to go up to n because you have to find the coefficient of x whose power is n. So here we have to find the coefficient of a raised to m in the expansion of this m plus n. कोई बताएगा मुझे क्या होगा? कंपेयर करवाना है दोनों को, है ना? यहाँ पर x रेज टू n का कोफिशिएंट लिखना है मुझे, x रेज टू n का कोफिशिएंट. तो मैं क्या लिखूंगा x रेज टू n टर्म का? तो यहाँ पर 1 प्लस x है तो यहाँ पर x है ना? तो होगा NCN, ये n से लेके ये n पावर तक, NCN x रेज टू n. तो यहाँ पर क्या होगा? इट विल बी लाइक दिस. ये पावर m प्लस n है, so it will be m plus n c, and this will be coefficient of a raised to n term, है ना? m term का लिखना है तो यहाँ पर m आएगा. Then coefficient of a raised to m term, this is m. Done. What is the coefficient of a raised to n? So in the expansion of 1 plus a raised to m plus n, coefficient of a raised to n will be, index to m plus n है, so it will be m plus n c. Coefficient of a raised to n term is m plus n cn. This will be m plus n cm. ये समझ में आया स्टूडेंट्स? Is that clear? This is coefficient of a raised to m term, and this is the coefficient of a raised to n term in the expansion of this 1 plus a raised to m plus n. अब ये दोनों को इक्वल दिखाना है. डन. सो इक्वल कैसे करेंगे? तो हमने एक फॉर्मूला स्टडी किया था, NCR इज इक्वल टू NCn माइनस r, है ना? 5C4 लिया था, तो 5C4 इज इक्वल टू 5C1. अगर आप चेक कर सकते हो तो 3C1 इक्वल टू 3C2. ये क्या हुआ? 3C1 इक्वल टू 3C3 माइनस 1. डन. ये दोनों इक्वल होंगे. सो NCR इज इक्वल टू NCn माइनस r. सो यूजिंग दिस फॉर्मूला व्हाट वी कैन राइट, m प्लस n, ये लिखना है हमें, m प्लस n cm. So m plus n cm, this is the coefficient of a raised to m. So this is equal to m plus n c, m plus n minus m cut. So this will be m plus n cn. So m plus n cn is nothing but the coefficient of a raised to n. So this one is coefficient of a raised to m. This is equal to coefficient of
a raised to n term in the expansion of this a 1 plus a raised to m plus n. प्रूव। क्लियर? समझ में आया? किसी को समझ में नहीं आया? अरे कोई तो रिप्लाई करो। So here, what you have to prove? Question number 9. We have to prove that in the expansion of 1 plus a raised to m plus n, अगर इसका एक्सपांशन करेंगे तो आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? कोफिशिएंट ऑफ a raised to m term is equal to कोफिशिएंट ऑफ a raised to n term। अभी ये आपको भूल जाओ। अभी हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है? 1 प्लस ए रेस टू एम प्लस एन की जगह पर हमारे पास फॉर्मूला जो हमने रट के रखा है अच्छी तरह से, है ना, वो है 1 प्लस एक्स रेस टू एन। ये वाला फॉर्मूला है। अगर इसका एक्सपांशन करें तो क्या होता है? एन से स्टार्ट करते हैं तो इट्स एन सी जीरो एक्स रेस टू जीरो। तो यहाँ पर एक्स है तो एक्स रेस टू जीरो टर्म का कोफिशिएंट क्या है? एन सी जीरो। एन सी वन एक्स रेस टू वन पावर वाली टर्म का कोफिशिएंट क्या है? एन सी वन। एन सी टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? एन सी टू। ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो लास्ट में आएगा एन सी एन, और एक्स रेस टू एन टर्म वाली जो टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? एन सी एन। तो यहाँ पर आप लिख पाएंगे कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू एन इज एन सी एन, है ना? क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू एन टर्म क्या होगा बोलो? ये जो फॉर्मूला लिखा, ये फॉर्मूला में कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू एन टर्म क्या होगा? एनसीएन होगा। ये समझ में आ रहा है कि ये भी नहीं आ रहा है? ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू एन टर्म इज एनसीएन। तो यहाँ हमारे पास ये 1 प्लस एक्स रेस टू एन नहीं है, यहाँ हमारे पास क्या है? ये तो हमने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए फॉर्मूला लिखा। यहाँ हमारे पास जो बाइनोमियल है वो है 1 प्लस ए रेस टू एम प्लस एन है, एन की जगह पर एम प्लस एन है। सो नाउ व्हाट यू टू प्रूव? कोफिशिएंट ऑफ ए रेस टू एम इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ ए रेस टू एन प्रूव करना है। तो हमारे पास जो बाइनोमियल है, गिवन बाइनोमियल, दैट गिवन बाइनोमियल इज, अभी हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये बाइनोमियल के लिए अप्लाई करेंगे, 1 प्लस ए रेस टू एम प्लस एन, है ना? जो x था वहां पर हमारा a है, और जो n था वहां पर हमारा m प्लस n है। तो अभी बोलो कि x रेस टू n, इसके जगह पर a रेस टू m का कोफिशिएंट लिखना हो मुझे, तो क्या लिखूंगा मैं? तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कोफिशिएंट ऑफ, दैट इज अवर लेफ्ट हैंड साइड, है ना, लेफ्ट हैंड साइड, कोफिशिएंट ऑफ ए रेस टू एम टर्म। बोलो क्या होगा? यहाँ पर मैंने लिखा था कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू एन टर्म, तो एन, ये जो एन लिया था वो कौन सा एन लिया था? ये जो इंडेक्स में था ना वो लिया था। तो अभी मुझे एन लेना है तो क्या लेना पड़ेगा? जो इंडेक्स में होगा वो। तो क्या लूंगा मैं? एम प्लस एन। आ रहा है समझ में? सो एम प्लस एन सी, यहाँ पर मैंने एम एन सी एन लिया था एन, तो ये एन कौन सा था? जो पावर था ना ये एन, वो था, है ना? हमें सबको पता है कि यहाँ पर जो नंबर आएगा ना वो एक्स का पावर होगा। एक्स मतलब यहाँ पर जो एक्स है वो, यहाँ पर एक्स नहीं है, यहाँ पर क्या है? ए। तो यहाँ पर जो नंबर आएगा कौन सा पावर होगा? ए का कोफिशिएंट। हमें कौन सा निकालना है? ए रेस टू एम। तो एम का पावर क्या है? यहाँ पर एम है, तो यहाँ पर होगा एम। सो दिस विल बी कोफिशिएंट ऑफ ए रेस टू एम टर्म। क्लियर? ये समझ में आया? अभी फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला मैंने आपको लिख के दिखाया था कि 3C1 की वैल्यू निकालो, और 3 माइनस 1 की वैल्यू, दैट मीन्स कि 3C2 की वैल्यू निकालो, दोनों इक्वल होगी। तो यहाँ पर वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या कि m प्लस एन सी एम इज इक्वल टू m प्लस एन माइनस एम। तो ये क्या होगा?
m प्लस एन सी m माइनस m कट m सी एन। तो ये m प्लस एन सी एन आ गया, तो ये क्या आ गया, m की जगह पर a आ गया, तो m की जगह पर a होगा, तो इट विल बी कोफिशिएंट ऑफ a रेस टू n टर्म। प्रूव। क्लियर नाउ? फॉर्मूला अच्छी तरह से किया है तो समझ में आएगा, अदरवाइज बैठे बैठे नहीं आया तो नहीं आने वाला है। ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। Find the coefficients of the term r minus 1, coefficient of the term r minus 1, rth term and r plus 1 term are in the coefficient of this r term, r minus 1 term and r plus 1 term in the expansion of binomial x plus 1 raised to n. We have to perform the expansion of this one. In the expansion of this binomial, the coefficient of r minus 1 term, r term and r plus 1 term are in the ratio. These terms are in the ratio of 1 ratio 3 ratio 5. So here find the value of n and r. Done? आपको n और r की वैल्यू निकालनी है। So which binomial is given? So here given binomial is x plus 1 raised to n. So x plus 1 raised to n is nothing but the 1 plus x raised to n. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 plus x raised to n। तो ये तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला ही है ना। इसका एक्सपांशन हमें पता है, इसका एक्सपांशन करेंगे तो मिलेगा nc0 x raised to 0, nc1 x raised to 1, nc2 x square plus ncn x raised to n। डन? तो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। डन? तो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट लिखना हो, सपोज जनरल फॉर्मूला लिखे टी आर प्लस 1। सो व्हाट इज अवर टी आर प्लस 1? टी आर प्लस 1 इज नथिंग बट द एनसीआर x raised to n minus r into y raised to r। और यहाँ पर x और y की जगह तो 1 ही है, यहाँ पर आपको सिर्फ 1 लिखना है। तो क्या होगा, सिर्फ 1 का पावर r, तो 1 का कोई भी पावर ले तो 1 ही होगा। तो हियर कोएफिशिएंट ऑफ r plus 1 term, coefficient of r plus 1 term will be ncr x, और x is x, it's x raised to n minus r, ऐसा फॉर्मूला होगा। डन? तो देखो ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट टर्म देखो, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म यही आएगा। कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है, ये फर्स्ट टर्म हमारा x raised to 0 है और इसका कोएफिशिएंट क्या है, nc0। तो 1 था तो यहाँ पर 0 आया। कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड टर्म मुझे लिखना है, तो क्या होगा, ये nc1 x raised to 1 है ना। देखो यहाँ पर 1 टर्म लिखा है तो r equal to 0 पुट करना पड़ेगा। So put r equal to 0 for the coefficient of first term. So if you are putting r equal to 0, it will be t1 nc0 और ये x raised to n minus r, x raised to n है ना। लेकिन ये हमने 1 plus x कर दिया तो यहाँ पर हमें 1 लेना है। डन? तो ये सेकंड टर्म हो गया। थर्ड टर्म के लिए होगा तो t3 nc2, जो भी टर्म होगा उससे कम होगा। डन? इट्स nc2 x raised to 2। थर्ड टर्म ये x raised to n आए या फिर x raised to 1 आए, हमें उसके कुछ लेना देना नहीं है, हमें चाहिए कोएफिशिएंट। तो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट आ रहा है nc0, सेकंड टर्म का कोएफिशिएंट आ रहा है nc1, थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट आ रहा है nc2। डन? तो बताओ व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ r minus 1? वो पहले छोड़ो, ये लिखो व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ r टर्म। कोएफिशिएंट ऑफ r टर्म क्या होगा, tr क्या होगा, इट्स nc r minus 1 कोएफिशिएंट। ये तो हमने पूरी टर्म लिखी, हमें कोएफिशिएंट सिर्फ यही लिखना है। डन? सो कोएफिशिएंट ऑफ tr टर्म इट्स ncr minus 1।
क्लियर हो रहा है? कोफिशिएंट लिख रहे हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ आर टर्म। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ आर माइनस वन टर्म? तो जो होगा एन सी आर, उसे एक सब्ट्रैक्ट कर देना है। इट्स एन सी आर माइनस वन, इट्स एन सी आर माइनस टू। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ आर माइनस वन टर्म, है ना, आर माइनस वन टर्म। कोफिशिएंट ऑफ आर प्लस वन टर्म, आर प्लस वन टर्म इज टी आर प्लस वन। तो वो क्या होगा, जो आर है उसमें एक सब्ट्रैक्ट करना है, तो इट्स एन सी आर प्लस वन माइनस आर, so it's NCR. These are the coefficients of R minus one term, R term and R plus one term. ये समझ में आया स्टूडेंट्स? Done. So here what we are given, the coefficient of this R minus one term, R term and R plus one term are in the ratio of 1 ratio 3 ratio 5. So now this is given. What we are given, the coefficient of R minus one term, R term and R plus one term. तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा पूरा, coefficient of R minus one term ratio, coefficient of R term ratio, coefficient of R plus one term. These three coefficients are in the ratio of which ratio? 1 ratio 3 ratio 5. So what is the coefficient of R minus one term? Coefficient of R minus one term is NCR minus 2. It's a NCR minus 2 ratio. Coefficient of R term, coefficient of R term is NCR minus 1. It's a NCR minus 1 ratio. Coefficient of R plus one term, R plus one term is NCR, and that is equal to 1 ratio 3 ratio 5. This is given. मैंने आपको क्या गिवन है वो डिराइव करके दिखाया। यहाँ तक समझ में आ गया? कोफिशिएंट कैसे लिखना है एक बार और रिपीट करो, देखो एक बार फिर से। ये x प्लस वन ही रहने दो, है ना, अदरवाइज कंफ्यूजन होएगा। तो x प्लस वन रेस टू n है, तो इसको लिखना है तो क्या होगा, एन सी जीरो एक्स रेस टू एन होगा, है ना। ये टर्म को आप, है ना, ये कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए x को आगे लिख के लिखेंगे फर्स्ट टर्म के फॉर्म में, तो क्या होगा, एन सी जीरो एक्स रेस टू एन प्लस एन सी वन एक्स रेस टू एन माइनस वन प्लस एन सी टू एक्स रेस टू एन माइनस टू, ऐसे ऐसे करके जाएगा। तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या है, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट एन सी जीरो, सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट क्या है, एन सी वन, थर्ड टर्म का कोफिशिएंट क्या है, एन सी टू, है ना। ये आपको टर्म नहीं देखना है। तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म के लिए आ रहा है एन सी जीरो, फर्स्ट टर्म के लिए आ रहा है एन सी जीरो, सेकेंड टर्म के लिए आ रहा है एन सी वन, थर्ड टर्म के लिए आ रहा है एन सी टू। तो आर टर्म के लिए क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ आर टर्म एन सी आर माइनस वन, है ना। कोफिशिएंट ऑफ आर टर्म विल बी एन सी आर माइनस वन, कोफिशिएंट ऑफ आर माइनस वन टर्म विल बी एन सी आर माइनस वन, इट्स एन सी आर माइनस टू, and coefficient of r plus 1 term will be ncr plus 1, ncr plus 1 minus 1, so it will be ncr. Done. So these are the coefficients of r minus 1 term, r term and r plus 1 term. They are in the given ratio of 1 ratio 3 ratio 5. Clear now? Now we have to form the equation from these given ratios. So how to form the equation? So let me again write the ratios. NCR minus 2 ratio NCR minus 1 ratio NCR, that is equal to 1 ratio 3 ratio 5. Done. Now I am comparing these two ratios, NCR minus 2, NCR minus 1, and these two ratios NCR minus 1 and NCR, that will be equal to 1 ratio 3 and 3 ratio 5 respectively.
कंपेयर करें तो कंपैरिजन के लिए पहले ये दोनों को मैं कंपेयर करवा रहा हूँ, NCR and NCR minus 1. So can we write like this, NCR upon NCR minus 1 equal to NCR is 5 and NCR minus 1 is 3, 5 by 3. Done. And दूसरा इक्वेशन क्या होगा, NCR minus 1 upon NCR minus 2 equal to 3 by 1. क्लियर? दोनों रेशियो पर से मैंने दोनों इक्वेशन को कंपेयर करवा के दो इक्वेशन फॉर्म किए। अब ये दोनों को आपको सिंप्लीफाई करना है। सो NCR अपॉन NCR माइनस 1, तो NCR का फॉर्मूला व्हाट इज इट, NCR इट्स n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल upon r factorial. This is NCR. Applying the same formula for the denominator. So denominator में क्या होगा, n factorial upon n minus r plus 1 factorial हो जाएगा. So it's n minus r plus 1 factorial into r minus 1 factorial. Clear? This is equal to 5 by 3. फॉर्मूला अप्लाई किया, ये न्यूमरेटर से कट हो जाएगा. दिस इज डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर, वो न्यूमरेटर में जाएगा. सो नेक्स्ट स्टेप इज n minus r plus 1 factorial, this one r minus 1 factorial divide by, this will be n minus r factorial equal to 5 by 3. अभी फैक्टोरियल को रिड्यूस करें, ये n माइनस आर प्लस 1 है, इसके आगे जाएंगे तो n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल होगा. सो देयरफॉर दिस वन इज n माइनस आर प्लस 1, उसके आगे होगा तो n माइनस आर फैक्टोरियल, एक नंबर सबट्रैक्ट होके फैक्टोरियल आएगा, r माइनस 1 एज इट इज, r माइनस 1 फैक्टोरियल एज इट इज डिवाइड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल एज इट इज. r फैक्टोरियल को मैं रिड्यूस कराऊंगा एक स्टेप, तो होगा r और दूसरे स्टेप में आएगा r माइनस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 5 by 3. डन. तो देखो अभी यहाँ पर r माइनस 1 फैक्टोरियल कट, n माइनस आर फैक्टोरियल कट. सो रिमेनिंग टर्म्स आर n माइनस आर प्लस 1, n माइनस आर प्लस 1 डिवाइड बाय r इक्वल टू 5 by 3. क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करो. सो वी आर हैविंग 3n माइनस 3r plus 3 equal to 5r. Taking this 5r in the left hand side, so it's a 3n minus 8r plus 3 equal to 0. This is first equation number 1 from this first equation. Now we have to again compare this one, so we'll get another equation. Done. तो उसको नेक्स्ट पेज पर करते हैं. NCR माइनस 1 अपॉन NCR माइनस 2 इक्वल टू 3 by 1. ये समझ में आया है ना? नहीं समझ में आया तो वीडियो को 3-4 बार करके रिवाइज करके देखो. सो नेक्स्ट NCR माइनस 1 अपॉन NCR माइनस 2 इक्वल टू 3 by 1. कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं? NCR वाला फॉर्मूला. अगर हमारे पास NCR है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, n फैक्टोरियल लेते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय ये दोनों का सब्ट्रैक्शन n माइनस r फैक्टोरियल और उसके बाद r फैक्टोरियल. बस ये वाला फॉर्मूला आगे भी 2 बार अप्लाई किया, यहाँ पर भी आपको 2 बार अप्लाई करना है. तो यहाँ पर NCR की प्लेस पर क्या है, NCR माइनस 1 है, तो क्या होगा, इट्स n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r माइनस 1, तो इट्स n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल एंड माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल और अगेन r फैक्टोरियल की जगह पर क्या आएगा, r माइनस 1 फैक्टोरियल. दिस विल बी r माइनस 1 फैक्टोरियल. अप्लाइंग दिस सेम फॉर्मूला फॉर दिस न्यूमरेटर, सेम वे फॉर डिनोमिनेटर. तो डिनोमिनेटर के क्या होगा, डिवाइड बाय
again ncr minus 2, so it's a n factorial upon n minus r plus 2, n minus r plus 2 factorial and r minus 2 factorial, r minus 2 factorial, and this is equal to 3 by 1. डन. ये एक न्यूमरेटर है, ये एक डिनोमिनेटर है. न्यूमरेटर न्यूमरेटर डिवीजन में आएगा तो ये कट हो जाएगा. ये डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर इट विल गो इनटू न्यूमरेटर एंड दिस डिनोमिनेटर विल कम्स इनटू द डिनोमिनेटर. So it's n minus r plus 2 factorial r minus 2 factorial upon ये वाला n minus r plus 1 factorial r minus 1 factorial equal to 3 by 1. सिंप्लीफाई करेंगे. ये n माइनस आर प्लस 2 है, इसको एक स्टेप रिड्यूस करो. 5 फैक्टोरियल है तो 5 इंटू 4 लिखेंगे, तो यहाँ पर एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा. और यहाँ पर r माइनस 2 r माइनस 1 है, इसको एक सब्ट्रैक्ट करेंगे r माइनस 1 और दूसरे स्टेप में होगा r माइनस 2 फैक्टोरियल, तो r माइनस 2 फैक्टोरियल कट हो जाएगा. तो यहाँ पर हम ये दोनों को रिड्यूस करेंगे फैक्टोरियल से. डन. और ये बाकी दोनों को एज इट इज रखेंगे. तो इसका क्या होगा सिंप्लीफिकेशन, n माइनस आर प्लस 2 एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल है ना. n माइनस आर प्लस 2 फैक्टोरियल का सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, n माइनस आर प्लस 2 n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल इनटू r माइनस 2 फैक्टोरियल एज इट इज डिवाइड बाय n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल एज इट इज, n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल एज इट इज. ये r माइनस 1 फैक्टोरियल को रिड्यूस करेंगे तो पहले स्टेप में होगा r माइनस 1 और एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो r माइनस 2 फैक्टोरियल ब्रेक लगाएंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. तो इट्स r माइनस 1 r माइनस 2 फैक्टोरियल. तो यहाँ पर आप चेक करो तो r माइनस 1 फैक्टोरियल r माइनस 2 फैक्टोरियल कट, n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल कट. So this is equal to 3 by 1. So what we are having? So this is equal to n minus r plus 2 upon r minus 1 equal to 3 by 1. Cross multiplication. So we are getting second equation. So that second equation is n minus r plus 2 equal to 3r minus 3. r माइनस 1 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो 3r माइनस 3 होगा. लेफ्ट हैंड साइड पर ले लो तो इट्स n माइनस 4r minus 1 equal to 0. Say this one as a equation number 2. Equation number 1 क्या था हमारा, ये था 3n minus 8r, 3n minus 8r plus 3 equal to 0. ये था हमारा इक्वेशन नंबर 1 है ना. These are the pair of linear equations in two variable and we have to solve this pair. हाँ हाँ प्लस 5 आएगा, प्लस 5. वेरी गुड. डन. अभी इसको सॉल्व करना है, बोलो क्या करेंगे. मल्टीप्लाई कर दे इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 8r हो जाएगा. सो इट्स 2n है ना, 2n माइनस 8r minus 2 equal to 0 and this one is 3n minus 8r plus 5 equal to 0. साइन चेंज करें. So this will be cut. 2n minus n and this is minus 2 minus 5 minus 7 equal to 0. Done. So here ये कुछ प्रॉब्लम लग रहा है मुझे, ये प्लस 5. हाँ कहाँ पर मिस्टेक की है बोलो.
n+5 ये, हाँ हाँ ये +5, वेरी गुड, ये तो सही था ना ये। हाँ हाँ वही वही, ये यहाँ पर क्या था क्वेश्चन नंबर 1 में +3 था। चलो +3 और +5, तो ये +5 और ये +3, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, है ना, दिस विल बी 10, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ये 3, तो ये 7 होगा, +7। डन, अभी हो गया, है ना, क्योंकि नेगेटिव में आता है इसलिए। सो नाउ n इक्वल टू 7, क्लियर अभी, देखो पूरा इक्वेशन किया और लास्ट में गड़बड़ की। सो n इक्वल टू 7, नाउ पुट दिस n इक्वल टू 7 इन आइदर ऑफ द वन इक्वेशन, put in equation number 1, so we are getting the value of r, क्या होगा n into 7, 21 minus 8r plus 3 equal to 0, so 24 equal to 8r, so r equal to 3, so we are getting our answer. Find the values of n and r, so n equal to 7 and r equal to 3, done. So this is how you can solve your question number, कौन सा था 10 नंबर, हो जाएगा ना, देखो 3 पेज भर के लिखा है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो तो हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, prove that coefficient of x raised to n in the expansion of 1 plus x raised to 2n is the twice of the coefficient of x raised to n in the expansion of 1 plus x raised to 2n minus 1. So here we have to prove that coefficient of x raised to n in the expansion of which 1 plus x raised to 2n, this is equal to twice of coefficient of the coefficient of x raised to n, in the expansion of which one, the binomial is 1 plus x raised to 2n minus 1, this we have to prove. Now coefficient of x raised to n term in the expansion of this one is twice of coefficient of x raised to n term in the expansion of 1 plus x raised to 2n minus 1. So first we'll find the coefficient of x raised to n in the expansion of 1 plus x raised to 2n. So now coefficient of x raised to n in the expansion of 1 plus x raised to 2n, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कैसे करना है। क्या होगा देखो, अभी n की जगह पर क्या लिखना है, 2n लिखना है, और x का पावर n, तो क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ x raised to n in the expansion of 1 plus x raised to 2n, it will be 2n c n, है ना, x का जो पावर होगा वो यहाँ पर आएगा, और जो बाइनोमियल का इंडेक्स होगा वो यहाँ पर आएगा। सो दिस विल बी द कोफिशिएंट ऑफ x raised to n टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ 1 plus x raised to 2n, ये जो 2n है वो यहाँ पर आएगा, और x का जो पावर है यहाँ पर आएगा। ये क्लियर, इसका सिंप्लीफिकेशन करके इसका कोफिशिएंट ले आएंगे। इसका कोफिशिएंट क्या होगा देखो, द कोफिशिएंट ऑफ x raised to n टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ 1 plus x raised to 2n क्या होगा, वो भी लिखते हैं चलो, और उसके बाद दोनों के बीच में रिलेशन डिराइव करते हैं। सो कोफिशिएंट ऑफ x raised to n टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ 1 plus x raised to 2n minus 1, तो ये क्या होगा, 2n की जगह पर 2n minus 1 आएगा, c n आएगा, तो ये कोफिशिएंट इसका ट्वाइस है, वो आपको प्रूव करना है। इन शॉर्ट क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट 2n cn इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 2n minus 1 cn, ये आपको प्रूव करना है। तो प्रूव करके देखते हैं, चलो लेफ्ट हैंड साइड
left hand side, that is the coefficient of x raised to n in the expansion of 1 plus x raised to 2n, and that is 2n cn. 2n cn. ncr का फॉर्मूला अप्लाई करें तो क्या होगा? दिस इज अवर n and this is our r. So ncr 2n factorial n factorial, it's a 2n factorial upon n minus r. 2n minus n, 2n minus n is 1n, n factorial upon this n factorial. Clear? Now इसका simplification, 2n factorial, we are writing this 2n factorial as a 2n, और सेकंड टर्म में उसका एक रिड्यूस करेंगे तो इट्स 2n minus 1 factorial, 2n minus 1 factorial, और नीचे n factorial एक को एज इट इज रखते हैं और दूसरे को रिड्यूस करते हैं n minus 1 factorial. ऐसा करने से क्या होगा? तो एक n बाहर आया तो वो n और ये n कट हो जाएगा, तो बचेगा 2. This one is 2n minus 1 factorial upon this n factorial into n minus 1 factorial. तो इसको कंपेयर कराओ, यहाँ पर कुछ लिखा था मैंने, कहाँ लिखा था? ये देखो 2n minus 1 c1 लिखेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? 2n minus 1 cn लिखेंगे तो ये आएगा. So now for right hand side, coefficient of x raised to n in the expansion of 1 plus x raised to 2n minus 1 is 2n minus 1 cn. So that will be equal to 2n minus 1 factorial upon 2n minus 1 minus n factorial upon n factorial. This is equal to 2n minus 1 factorial upon 2n minus n. So it's n minus 1 factorial upon 1 factorial. Done. So here this is the coefficient of x raised to n term in 1 plus x raised to 2n minus 1, and these both are equal. Done. So this is equal to left hand side is the twice of this right hand side. Clear? So hence we can prove the required result. Okay students, now question number 12. Here we have to find the positive value of m for which the coefficient of x square in the expansion of 1 plus x raised to m is 6. So here you have to find the coefficient of x square in the expansion of 1 plus x raised to m. So we know that coefficient of x square in the expansion of this 1 plus x raised to m is mc2. Here you have to consider index m, c, and you have to consider power of this x, which is 2, mc2, and that coefficient is 6. Solve this equation, we will get the value of m. So therefore mc2, which is m factorial upon m minus 2 factorial into 2 factorial equal to 6. So here we can reduce this m factorial up to m minus 2 factorial. So this is m minus 1, m minus 2 factorial upon this one is m minus 2 factorial into 2 factorial equal to 6. M minus 2 factorial cut, value of 2 factorial is 2, and therefore this one is m into m minus 1 by 2 equal to 6. Simplify this, so this will be m square minus m minus 12 equal to 0. So by factorization we are getting two values of m, that is m minus 4 m plus 3 equal to 0. Therefore m equal to 4 or m equal to minus 3. Here you have to consider positive value of m, and therefore our answer is m equal to 4. Clear? So pause the video and note it down.